Welcome all of you. Hello, welcome in a Swapnapurti Career Academy. It's an online platform for SCA Academy. In today's lecture, we discuss about the science class 7th, and we choose the chapter in a class 7th. That name is the heat. We start with the today's lecture from the chapter. That name is the heat. We start with the heat. So it is the chapter are in the class 7th, chapter number 4 from the NCERT. We today start. अब यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं कि जो चैप्टर है हमारा हीट, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर अकॉर्डिंग टू योर मिड टर्म एग्जाम्स आल्सो, एंड इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल चैप्टर. इन दिस चैप्टर वी डिस्कस अबाउट व्हाट इज मीन बाय द हीट एंड व्हाट इज मीन बाय द टेम्परेचर. हीट एंड टेम्परेचर, इन दोनों चीजों में व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन द हीट एंड आल्सो द टेम्परेचर. टेम्परेचर एंड हीट, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, वी हैव टू एनालाइज इन दिस lecture also, and this is a very important lecture according to the heat. And in this platform of the SCA Academy, we have to learn or we have to teach the chapter line by line, which are mentioned in your NCERT textbook. From line by line we have to start. So the fourth number chapter is heat, and we have to start the reading. In this chapter 3 you learn that woolen cloths are made from animal fibers. You know the animal fibers, okay? First of all, they say that in a previous standard or in a previous third chapter we discussed about the woolen cloths are obtained from the animal fibers. So animal fibers called as animal fibers. How we get the animal fibers, or what is the mean by animal fibers? The fibers are obtained from the animals. Animals से जो fibers हमें मिलते हैं, that fibers are to be utilized by the human or the living beings. Living beings जो use करते हैं, that fibers are obtained from the animals are called as the animal fiber. For example, leather. It is also the type of the fiber. Leather. Woolen also the type of the fiber. Woolen and leather are obtained from the animals. So the animal fibers are obtained from the animals called as the animal fibers. You also know that the cotton cloths are made from plant fiber. Cotton cloths, कौन से? Cotton cloths किससे बनाए जाते हैं? Cotton cloths are made from the plant fiber, as like a jute also the plant. जूट एक क्या है? एक प्लांट है. दूसरा कॉटन आल्सो द प्लांट. कॉटन भी एक क्या है? प्लांट है. जिससे हमें क्या मिलता है? जिससे हमें फाइबर्स मिलते हैं. दैट फाइबर्स आर डिराइव्ड फ्रॉम द प्लांट्स आर कॉल्ड एज द प्लांट फाइबर. वी वेयर वुलन क्लॉथ्स ड्यूरिंग अ विंटर. वुलन क्लॉथ्स हम कब पहनते हैं? इन अ सीजन ऑफ विंटर. व्हाई वी वेयर द वुलन क्लॉथ्स इन अ विंटर? वुलन क्लॉथ्स हम विंटर में क्यों पहनते हैं? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? व्हाई वी वेयर द वुलन क्लॉथ्स इन अ विंटर? दे सेज दैट ना, we wear the woolen cloths during the winter season. So the winter season, the temperature is less. Temperature क्या होता है winter season में? Winter season में temperature is very less. Due to that, for increase in the temperature or to feel well or to feel warm, हमें warm लगने के लिए we use the woolen cloths हम क्या करते हैं? पहनते हैं विंटर सीजन में. क्यों? उस कंडीशन में क्या होता है, जो टेम्परेचर क्या होता है, नीचे गिर जाता है. इसकी वजह से हम क्या पहनते हैं? वुलन क्लॉथ्स पहनते हैं ना विंटर सीजन. व्हेन इट इज कोल्ड आउटसाइड इज कोल्ड, वुलन क्लॉथ्स कीप अस वार्म. हमें कैसे फील कराते हैं? वार्म फील कराते हैं. विद रेगुलर टेम्परेचर वार्म फील कराते हैं बाय यूजिंग द वुलन क्लॉथ्स. वी प्रीफर टू वेयर द लाइट कलर्ड कॉटन क्लॉथ्स व्हेन इट इज हॉट. There are two conditions. One is the cold condition, and another condition is a hot condition. These are the two different conditions. One is the cold, another one is the hot. According to the season, cold condition in a winter season. कौन सी सीजन में आता है cold condition? Winter season. Hot season कब आएगा? समर में जो भी टेम्परेचर होता है वो कैसा होता है? थोड़ा सा इंक्रीज होता है. So from this chapter we have to analyze. There are two things. One is called as the cold, another one is the हॉट. एक थिंग्स कैसी है? हॉट. हमें महसूस होता है हॉटनेस और महसूस होता है कोल्डनेस बाय द स्किन. स्किन के टच से भी हम एनालाइज कर सकते हैं ना.
कौन सा ऑब्जेक्ट हॉट है, कौन सा ऑब्जेक्ट कोल्ड है, कौन सा ऑब्जेक्ट क्या है, हॉट है, कौन सा ऑब्जेक्ट कोल्ड है, बाय एनालाइजिंग और बाय द स्किन की मदद से हम एनालाइज कर सकते हैं कि कौन सा ऑब्जेक्ट कोल्ड है और कौन सा ऑब्जेक्ट हॉट है। अकॉर्डिंग टू दिस, अगर विंटर सीजन होता है तो कंडीशन कैसी है, कोल्ड कंडीशन है, अगर समर सीजन है तो कंडीशन कैसी है, हॉट कंडीशन है। अकॉर्डिंग टू दैट कंडीशन वी हैव टू वेयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लॉथ्स, अलग अलग के टाइप्स के हम क्लॉथ्स पहनते हैं अकॉर्डिंग टू द सीजन, टू प्रोटेक्ट फ्रॉम द कोल्डनेस एंड प्रोटेक्ट फ्रॉम द हॉटनेस आल्सो। कोल्ड से भी बचाने के लिए, हॉट से भी बचाने के लिए हम डिफरेंट टाइप्स के क्लॉथ्स अगर पहनते हैं। तो अगर विंटर सीजन है वी हैव टू वेयर द वुलन क्लॉथ्स, अगर समर सीजन है तो हम कौन से क्लॉथ्स पहनते हैं, लाइट कलर्ड एंड कॉटन क्लॉथ्स, लाइट कलर के क्लॉथ ज्यादातर हम पहनते हैं, ज्यादा डार्क कलर के क्लॉथ हम नहीं पहनते ही ना hot season or during the summer season. Why? What is the reason behind that? Because when the temperature is high at the summer season, the sun rays are come from the sun. We wear the darker or dark colored clothes. अगर डार्क कलर के क्लॉथ्स अगर हम पहनते हैं तो उससे क्या होगा, एनर्जी वहां से जो हीट एनर्जी वहां से आ रही है सन से, इट कैन बी ट्रैप, वहां पे क्या हो सकती है, ट्रैप हो सकती है। एंड ड्यू टू दैट हीट एनर्जी हमें क्या आ सकता है, थोड़ा सा पसीना आ सकता है एट दैट टाइम। इसकी वजह से हम ज्यादा डार्क कलर के क्लॉथ्स हॉट सीजन में नहीं पहनते, जैसे लाइट कलर कि वहां से लाइट रेज रिफ्लेक्ट हो सके, जल्दी से क्या हो सके, रिफ्लेक्ट हो सके, हीट एनर्जी कैन नॉट बी ट्रैप एट दैट मोमेंट, उस मोमेंट पे कोई भी हीट एनर्जी ट्रैप नहीं हो सके। इसकी वजह से एट द सीजन ऑफ हॉटनेस, समर सीजन में हम जो क्लॉथ्स पहनते हैं वो कौन से होते हैं, कॉटन क्लॉथ्स होते हैं, दूसरे लाइट कलर क्लॉथ्स होते हैं। A feeling of a coolness, you might have wondered why particular types of clothes are suitable for a particular season. According to these lines, that line says that this gives a feeling of coldness. You might have wondered why. Wondered why means why we wear the particular types of a cloth. We wear a particular types of clothes in a particular type of season. Particular types के जो सीजन है उसमें हम अलग अलग प्रकार के क्या पहनते हैं, क्लॉथ्स पहनते हैं, डिफरेंट टाइप्स के क्लॉथ्स पहनते हैं। क्यों पहनते हैं, बिकॉज ऑफ द हॉटनेस एंड द कोल्डनेस ऑफ द कंडीशन। वहां पे कंडीशन कैसे, एक तो हॉट कंडीशन है, दूसरी कोल्ड कंडीशन है। इससे प्रोटेक्ट करने के लिए वी हैव टू वेयर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लॉथ्स इन अ डिफरेंट सीजन। अलग अलग सीजन में हम अलग अलग क्लॉथ यहाँ पे पहनते हैं टू प्रोटेक्ट फ्रॉम द कोल्ड ऑब्जेक्ट्स एंड कोल्ड कंडीशन एंड एज वेल एज द हॉट कंडीशन। इन नेक्स्ट लाइन says that in a winter you feel cold inside the house, if you come out in the sun you feel warm, in a summer you feel hot even inside the house. How do we know whether an object is hot or cold? How do we find out how hot or cold an object is? In this chapter, we shall try to seek answer to some of these questions. According to these lines or according to this paragraph, it says that how will you analyze which object is hot or which object is cold? How will you analyze, or how will you analyze the different types of seasons? If there is winter season is there, if there is summer season is there, rainy season is there, how you to analyze in a different types of a season, the temperature of that seasons are different. Different season have a different temperature. तो exact what is the meaning of that temperature? टेम्परेचर से ही पता चलता है ना। How do you analyze the things is hot or cold? कैसे पता चलेगा टेम्परेचर से? अगर कोई ऑब्जेक्ट 50 डिग्री सेल्सियस पे है, 50 डिग्री सेल्सियस, ओके 50 डिग्री सेल्सियस, हाँ सर 50 डिग्री सेल्सियस पे अगर कोई ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है 50 डिग्री सेल्सियस, तो इसका टेम्परेचर है 50, so we can say that is somehow it's a hot object. If the object has a 20 degree Celsius temperature, then we can say that this object has a cold. So the temperature give idea about how the object is cold or hot. So what is my temperature? Temperature is the level. Temperature is the level, or temperature is the degree. Temperature is what? Temperature is the degree of that hotness or coldness of the object. अगर कोई ऑब्जेक्ट कोल्ड है, अगर कोई ऑब्जेक्ट अगर हॉट है, तो उसका लेवल कितना होगा, उसकी डिग्री कितनी होगी, दैट डिग्री एनालाइज द टेम्परेचर। उस डिग्री से हम पता कर सकते हैं कि वो ऑब्जेक्ट हॉट है या
कोल्ड है, सो द नथिंग बट द टेम्परेचर इज द लेवल और द टेम्परेचर इज द डिग्री टू एनालाइज टू आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट इज हॉट और कोल्ड। ऑब्जेक्ट हॉट है या कोल्ड है ये हमें कब पता चलेगा, उसके टेम्परेचर से पता चलेगा। तो व्हाट इज मीन बाय टेम्परेचर? टेम्परेचर इज द डिग्री, एक क्या है, लेवल है, कौन सी भी ऑब्जेक्ट का बताना कि ये हॉट ऑब्जेक्ट है ये कोल्ड ऑब्जेक्ट है। कौन बताएगा? टेम्परेचर बताएगा। टेम्परेचर क्यों बताएगा? बिकॉज टेम्परेचर इज द डिग्री और द लेवल ऑफ दैट ऑब्जेक्ट विच इज हॉट और कोल्ड। वो कितना हॉट है और कितना कोल्ड है ये हमें कौन बताता है? It directly says that the temperature. Okay, temperature, you know that the temperature is the degree or the level of that object which is the hot or cold. और hotness और coldness की जो डिग्री है, जो लेवल है, अगर कोई ऑब्जेक्ट मैं कहता हूं इट्स टू हॉट, इतने से काम नहीं बनेगा ना। इतने से काम बनेगा कि मैं बोलता हूं कि दिस ऑब्जेक्ट इज अ हॉट, कितना हॉट। हमें अगर उसको मेजर करना है तो वी यूज द टेम्परेचर, and temperature gives the idea or temperature gives the level or the degree of that hotness or of that coldness। ये टेम्परेचर हमें बताएगा कि वो ऑब्जेक्ट हॉट है या कोल्ड है। दूसरा, from this paragraph we have to analyze the two words, one is the heat, another one what is the temperature। So what is the difference? What is the actual difference between the heat? अगर मेरे पास हीट है और दूसरा अगर मेरे पास टेम्परेचर है, okay, what is the actual difference? Some students are very confusing about that. Some students that cannot analyze, sir, what is my heat and what is my temperature? We know that the temperature is the degree to analyze or to identify the objects or the degree of that hotness or the coldness of the object। उस ऑब्जेक्ट को कितना हॉट है कितना कोल्ड है टेम्परेचर हमें बताएगा ना। लेकिन सर ये हीट क्या है? व्हाट इज मीन बाय हीट? What is the exact definition? How will we identify or how will we summarize the difference between the heat and temperature? So heat, we talk about only the heat. Heat is the form of, it's a form of energy. What is it? Heat is a form of energy. Heat क्या है? एक एनर्जी का फॉर्म है। For example, when the sunlights are come from the sun, when the sunlights are comes from the sun, they strike on an object। अगर वो किसी ऑब्जेक्ट को अगर वो स्ट्राइक करते हैं, फॉर एग्जांपल here is some object, if there is an object, sun rays are come from the sun, sun से कुछ रेज आ रही है यहां से, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर स्ट्राइक करेंगे एंड रिफ्लेक्ट करेंगे बाद में। आफ्टर दैट सम अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी आर एब्सॉर्ब बाय दिस पार्ट। ये जो ऑब्जेक्ट है, जो सन से हीट एनर्जी आ रही है, ये क्या कर रहा है? थोड़ा सा एब्सॉर्ब कर रहा है। ड्यू टू दैट दिस ऑब्जेक्ट इज अ हीट अप। ये थोड़ा सा क्या हो गया? हीट अप हो गया, गर्म हो गया। इसका जो टेम्परेचर था, टेम्परेचर कैसा हो गया? थोड़ा सा इंक्रीज, टेम्परेचर इंक्रीजेस। व्हेन इज टेम्परेचर इंक्रीजेस? व्हेन द सन रेज आर कम फ्रॉम द सन, स्ट्राइक ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर स्ट्राइक करते हैं। आफ्टर दैट दिस ऑब्जेक्ट एब्सॉर्ब द हीट एनर्जी आर कम फ्रॉम द सन, सन से जो हीट एनर्जी आ रही है उसको उसने क्या कर लिया? एब्सॉर्ब कर लिया। आफ्टर दैट ऑब्जेक्ट इंक्रीज टेम्परेचर, उस ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर क्या हो गया? इंक्रीज हो गया है। कब? व्हेन दे एब्सॉर्ब द हीट, दे एब्सॉर्ब द हीट। हीट एब्सॉर्ब करने के बाद टेम्परेचर बढ़ गया है, इंक्रीज हो गया है। From this example we can conclude that heat energy is required, heat energy is required to increase the temperature of the object। किसी ऑब्जेक्ट का अगर मुझे टेम्परेचर इंक्रीज करना है, बढ़ाना है, we require the heat। Without heat we cannot increase the temperature of the object। किसी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर अगर मुझे बढ़ाना है, फॉर एग्जांपल इस सब्सटेंस का जो प्रीवियस जो टेम्परेचर था वो था 20 डिग्री सेल्सियस। ओके, इट्स अ 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ऑब्जेक्ट इज देयर। आफ्टर सन्स रेज रिफ्लेक्ट ऑन दैट सरफेस, दैट ऑब्जेक्ट एब्सॉर्ब द heat energy and due to the absorbed heat energy its temperature increases from 20 degree celsius to 30 degree celsius। टेम्परेचर कितना हो गया है? पहले 20 था, by absorbing the heat energy it increases temperature from 20 degree celsius to 30 degree celsius। this is the relation between the heat and temperature। temperature is gives the degree of that hotness or coldness of the object।
लेकिन टेम्परेचर को इंक्रीज करना है, 20 से 30 लेके जाना है, तो वी रिक्वायर द हीट एनर्जी. विदाउट हीट एनर्जी टेम्परेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी इंक्रीजेस. हीट एनर्जी से टेम्परेचर, हीट अगर हम प्रोवाइड करेंगे तब जाके it can be increased its temperature. So temperature is gives only the idea about object is cold or hot. Object cold है या hot है, ये कौन बताता है? Temperature. Temperature क्या बताता है कि कौन सा object hot है and कौन सा object cold है, यही हमें बताएगा. लेकिन heat क्या है? Heat is the form of energy and that energy are utilized by the object. इस ऑब्जेक्ट ने वो हीट एनर्जी एब्सॉर्ब कर ली. ड्यू टू दैट इट्स टेम्परेचर इंक्रीजेस फ्रॉम 20 डिग्री सेल्सियस टू 30 डिग्री सेल्सियस. दिस इज द एग्जैक्ट डिफरेंस बिटवीन द हीट एंड टेम्परेचर. ये क्या है? मेन डिफरेंस है. अगर कोई भी आपके सवाल पूछता है कि व्हाट इज बाय हीट, सो हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, नथिंग बट दैट. हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड एनर्जी का एक छोटा सा रूल होता है. That energy's rule is energy cannot be created nor be destroyed. It can be converted only. एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो सकती है, क्यों? और एक ऑब्जेक्ट से दूसरी जगह क्या हो सकती है? ट्रांसफर हो सकती है. दिस कॉल्ड एज द हीट और इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी. दूसरा, इसमें अगर कितनी हीट प्रोवाइड हो रही है, हाउ टू कैलकुलेट और हाउ टू मेजर. हम इसको मेजर कैसे करते हैं? इट्स एसआई यूनिट. एसआई यूनिट इज क्या है? जूल है. एसआई यूनिट इज द जूल. कोई भी पैरामीटर्स और कोई भी फिजिकल क्वांटिटी यू हैव टू मेजर. अगर कोई भी फिजिकल क्वांटिटी आपको मेजर करनी है, फॉर एग्जांपल यू हैव टू मेजर द डिस्टेंस. डिस्टेंस इज द फिजिकल क्वांटिटी. डिस्टेंस इज द फिजिकल क्वांटिटी. ये फिजिकल क्वांटिटी वी हैव टू मेजर. फॉर दैट वी यूज द एसआई यूनिट. एसआई यूनिट कॉल्ड स्टैंड फॉर स्टैंडर्ड ऑफ इंटरनेशनल. स्टैंडर्ड ऑफ इंटरनेशनल. इट्स वर्ल्ड वाइड यूज. ये वर्ल्ड वाइड यूज किया जाता है. डिस्टेंस, फॉर एग्जांपल वी यूज द डिस्टेंस. डिस्टेंस के लिए, डिस्टेंस मेजर करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? मीटर. करते हैं कि नहीं? मीटर यूज करते हैं, किलोमीटर यूज करते हैं, सेंटीमीटर यूज करते हैं. दिस आर द शॉर्ट फॉर्म. किलोमीटर इज द हायर फॉर्म. उसके नीचे थोड़ा सा आता है मीटर. मीटर से नीचे क्या आएगा? सेंटीमीटर. तो डिस्टेंस वी हैव टू मेजर मीटर, सेंटीमीटर और किलोमीटर. हम ऐसे बताते हैं ना कि मेरे फ्रेंड का जो घर है यहां से 2 किलोमीटर है. कितना है? 2 किलोमीटर. तो किलोमीटर is the SI unit to measure the distance. वैसे ही हमें अगर हीट मेजर करनी है, we have to measure the heat. For that which type of SI unit are we to use? उसके लिए हम कौन से टाइप का SI यूनिट यूज करते हैं? सर, हीट एनर्जी अगर हमें मेजर करनी है तो हमारे पास SI यूनिट है क्या? यस, we have the SI unit and that SI unit name as the joule. उसे क्या कहते हैं? हम जूल कहते हैं. क्या कहते हैं? जूल. You have to remember that. Heat is a form of energy. What is the measurement? How to measure it? From the or by the joule. हम जूल से उनको क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, ये टेम्परेचर मुझे बढ़ाने के लिए 5 जूल इतनी एनर्जी लगी है. 5 जूल एनर्जी टू बी रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर टू 30 डिग्री सेल्सियस. इट्स एग्जाम्पल. इट्स नॉट अ प्रैक्टिकल. नहीं तो आप बोलोगे सर आपने तो बोला था 5 जूल की एनर्जी लगी है हमें 20 से 30 तक जाने के लिए. It's only for example. It's not practically possible कि 10 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है by using only 5 जूल. I am giving the example for that only कि 5 जूल means is the SI unit. Joule is the SI unit to measure the heat energy. Okay? वैसे हमारे पास टेम्परेचर है. टेम्परेचर के लिए सर SI यूनिट क्या है? What is the SI unit to measure the temperature? टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हमारे पास SI यूनिट है called as the Kelvin. Kelvin भी है. दूसरा सेल्सियस है. Celsius and Fahrenheit also is there. These 3 units are to be used to measure the temperature. एक तो Kelvin यूज कर सकते हो, no problem for that. Celsius यूज कर सकते हो, no problem for that. And also you can use the Fahrenheit also. Fahrenheit भी आप क्या कर सकते हो? यूज कर सकते हो to measure the temperature. So basically we talk about the temperature. SI unit is the Kelvin. SI unit is a Kelvin. We can measure with the help of Celsius also. We can measure with the help of Fahrenheit also. So today's lecture we discuss about only the how the objects are cold or the hot, or how to analyze which one is the hot, which one is the cold. We discuss about the temperature. We discuss about the heat. What is heat? Is the form of energy.
उसका हमने एसआई यूनिट देखा, आफ्टर दैट टेम्परेचर देखा, टेम्परेचर का एसआई यूनिट क्या है, डिफरेंस दोनों का यहां पर देखा। होप you understand all the concepts very clearly. If you have any doubts, you can ask in a comment section also. Okay.